Good morning, class. So, for today's topic, we are going to start with AIDS and HIV, or HIV or AIDS. HIV, or human immunodeficiency virus, damages a person's body by destroying specific blood cells called CD4 T cells, which are crucial to help the body fight disease. HIV में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में CD4 प्लस सेल होते हैं, प्लस T सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. T cells, B cells are getting destroyed. Okay, AIDS, and these cells are responsible for our immune system. हमारे immune system के लिए cells बहुत important होते हैं. Next comes the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. This is the final stage of HIV infection, where CD4 cell drop to a very low level and a person's ability to fight infection is lost. इसमें क्या होता है ना, जो CD4 सेल है वो इतने कम हो जाते हैं कि the person's ability or the person's immunity gets so low that he or she is unable to fight against the disease condition. HIV AIDS prevalence: 38 million people are living with HIV or AIDS. और ये जो स्टडी हुई थी 2006 में हुई थी, उसके बेसिस में है कि 38 मिलियन पीपल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड वो एड्स से सफर कर रहे हैं. अभी तक तो बहुत बढ़ गया होगा वो. ट्रांसमिशन ऑफ HIV, HIV कैसे ट्रांसमिट होता है? Having sex with an infected partner, or among injection drug users who are sharing same needle for the purpose of taking drugs. Women can transmit HIV to the babies at the time of pregnancy, breastfeeding, birth. Accidental needle stick injury, अगर needle stick injury हो जाए तो accident से, मतलब ये मोस्टली जो needle stick injury है वो नर्सेस या डॉक्टर्स या फिर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उन्हीं को होता है. तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप किसी भी तरह से किसी HIV पेशेंट का रिलेटेड टू ब्लड और स्टिक निडल से रिलेटेड आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी आपने इंजेक्शन दिया, आपने कोई सैंपल लिया, और जब आप जो निडल है उसको जब आप डिस्पोज कर रहे थे तो आपने प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया, और डिस्पोज करते टाइम because of mal-handling the needle, it gets stick to your own finger or hand, and now the chances of transmitting HIV to you is also increased. So this is how. Next, blood products. Any sort of transmission of blood products can lead to HIV from an infected person. Development of HIV infection. In the symptoms usually disappear on their own within a few weeks, and then the people has no symptoms and feels normal. This asymptomatic phase can last for years. Symptoms usually disappear हो जाते हैं स्टार्टिंग के कुछ दिनों के बाद. ओके, स्टार्टिंग के कुछ दिनों थोड़े सिम्टम्स होते हैं, फिर उसके बाद वो अपने आप ही डिसअपेयर हो जाते हैं और पर्सन स्टार्ट फीलिंग वेरी नॉर्मल. और ये जो एसिम्टोमेटिक फेज है वो लास्ट कर सकता है अराउंड, मतलब फॉर इयर्स,
सालों के लिए ये एसिम्प्टोमेटिक फेज लास्ट कर सकता है। तो पेशेंट कोई सिम्टम्स ही नहीं है, नॉर्मल जैसे इंसान है वैसे रह रहा है आराम से। और जो एसिम्प्टोमेटिक फेज है ना, इसमें क्या होता है कि वायरस कंटिन्यूज टू मल्टीप्लाई। जो वायरस है एसिम्प्टोमेटिक फेज में बॉडी में मल्टीप्लाई करता रहता है, बॉडी में प्रेजेंट है और वो मल्टीप्लाई करता रहेगा। और आप देखोगे अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन को लोग, उसमें आउट ऑफ 5 1 person doesn't know that he or she is infected and they are continuing spreading the disease by any mode. I mean either through sex or through needle, uh, injection drug or through blood transfusion. Anyhow, they are transmitting it. Symptoms of HIV. Some develops flu-like symptoms days, weeks after exposure. Okay. Next, HIV processes in stages. Early HIV symptoms में क्या होता है? कुछ लोगों में तो फ्लू जैसा सिम्टम्स दिखेगा आपको। ओके। और ये फ्लू जैसा सिम्टम्स डेज चल सकता है या वीक के लिए चल सकता है। तो अगर और HIV का प्रोग्रेस आप देखोगे तो वो स्टेजेस में होता है HIV प्रोग्रेस। जो अर्ली HIV सिम्टम्स है वो होते हैं फीवर, हेडेक, फैटीग, एनलार्ज लिम्फ नोड्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, स्किन रश, वेट लॉस। These are early HIV symptoms. And chronic HIV symptoms में आप देखोगे डायरिया, loss of appetite, weight loss, nail changes, night sweats, confusion, difficulty concentrating or personality changes, repeated outbreak of cold sores and genital herpes. cold sores होने लगे और genital herpes होने के chances होते हैं बहुत ज्यादा। mouth sores। HIV से AIDS में कैसे कन्वर्ट होता है? In the final stage of HIV, the immune system and CD4 level drops so low, below 200 cell per cubic millimeter, इतना ड्रॉप कर जाता है। The immune system loses its ability to fight infection. Now, जो फाइनल स्टेज होगा, मतलब जब HIV से एड्स कन्वर्ट हो रहा है तो वो HIV का फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो CD4 सेल है वो इतने लो हो जाते हैं नंबर में कि इनका नंबर लो हो जाता है लेस देन 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतने लो हो जाते हैं। और इसके बाद बॉडी की जो एबिलिटी होती है फाइटिंग अगेंस्ट एनी ऑफ द डिजीज कंडीशन इज कम्प्लीटली लॉस्ट। देन इसके बाद क्या होता है, कोई भी इंसान कभी भी HIV या एड्स से नहीं मरता है, वो मरता है किसी और डिजीज कंडीशन से। HIV और एड्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम खत्म कर देते हैं, उसके बाद कोई जो भी डिजीज कंडीशन पहले पर्सन को होगा उसी से वो उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। इतना वर्स्ट उसका इम्यून सिस्टम इतना वर्स्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट कम्स द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है, मतलब मौका परस्त इन्फेक्शन। ये क्या होते हैं कि जैसे इम्यून सिस्टम लो हो गया पेशेंट का, अब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है ना, डायरिया हो सकता है, पेशेंट को भूख तो लगेगी नहीं, नौजिया हो सकता है, हर्पीज हो सकता है, एनीथिंग। सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के जब इम्यून सिस्टम लो होता है तो वो होता है कैंसर। HIV के पेशेंट को या एड्स के पेशेंट को कैंसर हो जाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। जैसे एड्स डेवलप हो जाएगा, मतलब जब तक HIV का स्टेज है तब तक, क्योंकि तब तक क्या होता है कि वायरस मल्टीप्लाई कर रहा होता है और हम CD4 सेल को हमारे बॉडी में डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। But once the HIV is converted into AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, then what happens? That the person's immune system falls apart and opportunistic
infections occurs once the AIDS is developed in the person. और आप मोस्टली देखोगे कि एड्स के पर्सन को मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर हो जाता है. Now we are going to see most common AIDS related infection. First है cancer. Next is candidiasis thrush यानी कि फंगल इन्फेक्शन. साइटोमेगालोवायरस CMV वायरल इन्फेक्शन होता है. और ये वायरल इन्फेक्शन तब होगा जब पर्सन का जो बॉडी में CD4 सेल का जो लेवल है वो लेस देन 50 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर रह जाता है. देन हर्पिस हो सकता है, मलेरिया, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कुछ भी हो सकता है. एंड ड्यू टू दिस ऑल कंडीशंस द पेशेंट विल डाई. डायग्नोसिस में आप देखेंगे HIV एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे हम, जिसमें क्या क्या आता है. एलाइजा आता है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे. और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट. ओके, वेस्टर्न ब्लॉट एसे. तो एलाइजा करने के बाद उसको कंफर्म करने के लिए एक बार वेस्टर्न ब्लॉट एसे टेस्ट भी करते हैं. और 2 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, 2 हफ्तों से 6 महीने तक लग सकता है कि आप एक पर्सन के बॉडी में HIV का एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो. ओके, ब्लड में. एज ए नर्स हमारे क्या काम हो सकते हैं, लैब वर्क क्या हो सकता है हमारे लिए. CBC टू डिटेक्ट द नंबर एंड टाइप ऑफ सेल्स इन योर बॉडी और इन द पेशेंट्स बॉडी. ठीक है, CBC टेस्ट करेंगे. कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल टेस्ट करेंगे. उसके बाद उसमें क्या होगा, उसका किडनी, लिवर, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस एंड प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन सबका टेस्ट होगा. और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है. ब्लड कल्चर्स होंगे. सिफिलिस का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस A B C का टेस्ट होगा, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट होता है, CD4 सेल काउंट होता है, मतलब सेल CBC में ही हो जाता है ये. और वायरल लोड कितना है बॉडी में HIV का, वायरल का कितना लोड है वो देखेंगे. न्यूरोलॉजिकल स्टडीज होती हैं कि पेशेंट डिप्रेस तो नहीं हो रहा है और कोई न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है. उसके लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं TB को डिटेक्ट करने के लिए. अगर न्यूमोसाइटिस है उसके लिए, निमोनिया हो गया इसके लिए, या TB तो नहीं हो गया, इस सब चीजों के लिए. HIV का ट्रीटमेंट क्या है. इसमें होता है HAART, हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट. ये बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि ये क्या करता है, वायरस को रेप्लिकेट होने से रोक देता है. अगर वायरस ज्यादा रेप्लिकेट नहीं हो रहा है तो हमारे बॉडी में T सेल या फिर जो भी CD4 सेल आपने सुना था, या फिर T सेल, एक ही बात है, उनका डिस्ट्रॉय होना भी कम हो जाएगा. 2+2 ब्लड टेस्ट होना बहुत जरूरी होता है ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले. फर्स्ट वन इज जीनोटाइपिक टाइपिंग, ऐसे डिटेक्ट म्यूटेशन इन वायरल जीन. And phenotyping assay measures the ability of the virus to grow in cells with antiretroviral medicines. तो जीनोटाइपिंग ऐसे और फिनोटाइपिंग ऐसे दोनों का टेस्ट होना जरूरी है. जीनोटाइपिंग ऐसे में क्या होता है कि जीन जो वायरस है उसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं है, ये फाइंड आउट करता है. और फिनोटाइपिंग ऐसे में क्या करते हैं कि वायरस कितनी एबिलिटी है कि वो कितने फास्ट ग्रो कर सकता है, कि ये चेक करते हैं. ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देते हैं,
हार्ट में जो भी मेडिसिन होता है दैट इज हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन आते हैं? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTIS, एंट्री एंड फ्यूजन इनहिबिटर, फ्यूजन इनहिबिटर, प्रोटीज इनहिबिटर। हमारा दो की गोल होता है, जो HIV का ट्रीटमेंट होता है उसका दो ही की गोल है। पहला कि वायरल लोड कम रखें हम, यानी कि हमको वायरल को मल्टीप्लाई करने नहीं देना है, और हाई CD4 सेल काउंट, और जो T सेल काउंट है या CD4 सेल काउंट है वो हाई रहे, ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो स्ट्रांग रहे, और किसी भी तरह का कोई और अपॉर्चुनिस्टिक अगर डिजीज कंडीशन अगर होता है बॉडी में तो उससे अगेंस्ट फाइट कर सके। नर्सेस का क्या रोल है? एक्सेस एंड मैनेज सिम्टम्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल नर्सिंग इंटरवेंशन एंड मेडिकेशन। मतलब जो भी सिम्टम्स है उनको हमको नॉन फार्माकोलॉजिकली मेंटेन करने की कोशिश करना है, मैनेज करने की। प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन फॉर ऑल मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन आप दे रहे हो अगर पेशेंट को कहीं पे भी डाउट है तो आपको उसको, और वो अगर आपसे पूछता है तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सप्लेन ऑल द मेडिकेशंस टू द पेशेंट। हाँ, हेल्थ आप कैसे प्रमोट कर सकते हो उसके लिए भी पेशेंट को आप एडवाइस करोगे। स्टिग्मा इन नर्सिंग केयर से रिलेटेड क्या क्या स्टिग्मा है? The stigma associated with AIDS has silenced one's discussion, both it can both of its causes and of appropriate responses। तो जो भी स्टिग्मा रहा है एड्स के से रिलेटेड, मतलब स्टिग्मा की वजह से क्या अफेक्ट होता है या स्टिग्मा क्या है नर्सिंग केयर में? इसकी वजह से, स्टिग्मा की वजह से एड्स से रिलेटेड जो लोग आम लोगों में जो स्टिग्मा है उससे रिलेटेड, उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के बारे में और पेशेंट की डिजीज कंडीशन के बारे में खुल के बात नहीं हो पाती है। तो अगर बात हो अच्छी तरह से तो अच्छे रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, राइट, अच्छे सोल्यूशन भी मिल सकते हैं। Stigmatization associated with AIDS include lack of understanding of the illness, misconception about how AIDS is transmitted, lack of access to treatment, irresponsible media reporting on the epidemic, the incurability of AIDS, and prejudice and fear related to numbers of socially sensitive issues including sexually sexuality, disease and death, and drug use। मतलब सबसे पहले तो क्या है, जो स्टिग्मा है वो कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलनेस, इस डिजीज के बारे में लोगों के बीच में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पूरी तरह से नहीं समझते इस डिजीज कंडीशन को, और इसके फैलने को लेके भी ज्यादा मिसकंसेप्शन है। लोगों को अगर लगता है कि किसी को एड्स हुआ है, दे थिंक दैट इट इज ड्यू टू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, और वो उसको उस पर्सन को एक टाइप कास्ट करना शुरू कर देते हैं सोसाइटी में। इवन मीडिया का भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। मीडिया भी मतलब चाहे तो बहुत अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, बट वो भी इतना पार्टिसिपेट नहीं करता है इन सब चीजों में। पहले से ही लोगों के बीच में एक प्रेजुडाइज है, मतलब पहले से ही एक जजमेंट है लोगों के अंदर कि अगर उनको जैसे ही पता चलेगा कि ये एड्स का पेशेंट है, तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग बिहेवियर एंड ही इज नॉट ए गुड कैरेक्टराइज्ड पर्सन, ही इज नॉट ए गुड कैरेक्टर पर्सन, ऐसे उनके मन में बिहेवियर है। और फियर भी है कि अरे हम इस पेशेंट के साथ रहेंगे, इसके साथ उठेंगे बैठेंगे तो हो सकता है हमें भी हो जाए। तो ये सारे हैं, और लोगों के बीच में ये भी है कि पेशेंट है तो ये तो मर ही जाएगा, या तो फिर ये यू नो
सेक्सुअली इन्वॉल्व रहता होगा बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में, या फिर ये ड्रग्स लेता होगा। इस तरह के ही थॉट प्रोसेस रहते हैं लोगों के अंदर में। और इन स्टिग्मा से डील करने के लिए भी ग्लोबली सेंसस बनी है। एड्स रिलेटेड स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है एड्स के पेशेंट के साथ, उनसे डील करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली स्पेशल सेशन ऑन HIV एंड एड्स ऑन जून 2011 में पास हुआ था ये। Declaration states that confronting stigma and discrimination is a prerequisite for effective prevention and care, and reaffirms that discrimination on the ground of one's HIV status is a violation of human rights। तो इस जो ये पास हुआ इन 2011 में, जो ये सेंसस पास हुआ, ग्लोबल सेंसस पास हुआ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के थ्रू इन जून 2011 में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी एड्स के पेशेंट के साथ कोई भी अगर भेदभाव करता है, तो या उसको किसी भी तरह का उसके साथ टिपिकल बिहेवियर करता है, तो या हरासमेंट का बिहेवियर रखता है, तो वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आएगा। और पहले से ही उसको डिस्क्रिमिनेट करना, और पहले से ही एक प्री रिक्विसाइट थॉट प्रोसेस रखना भी एड्स के प्रिवेंशन के लिए भी खराब है। क्योंकि अगर लोग बताएंगे नहीं कि हमको एड्स है, हम उनको कैसे नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, बीइंग ए हेल्थ केयर वर्कर और एनीवन, राइट? उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना भी जरूरी है, अदरवाइज वो दे विल कीप ऑन स्प्रेडिंग इट। HIV AIDS in children. At the end of 2010, there were 3.4 million children living with HIV around the world. Okay, of the 1.8 million people who died of AIDS also during 2010, 1 in 7 were children। तो देखिए चिल्ड्रंस में भी HIV AIDS का रेट बहुत ज्यादा है। और चिल्ड्रन में अब कैसा होता है, थ्रू मदर या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, इसी से हो सकता है, और कोई चांस नहीं है। Important HIV infected children are diagnosed as quick as possible for treatment. Testing children for HIV can be complicated, especially for those recently born to HIV positive mothers। तो बच्चों का टेस्ट करना थोड़ा टफ हो सकता है, और स्पेशली उन बच्चों का जिनकी माँ अब जिनका अभी जस्ट बर्थ हुआ है, यानी जिस बच्चे की अभी जस्ट डिलीवरी हुई है और उसकी माँ HIV पॉजिटिव थी, तो चांसेस होता है कि बेबी भी HIV पॉजिटिव हो, तो उसका टेस्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट which are used to diagnose HIV in adults are ineffective in children below the age of 18 months। जो सारे टेस्ट हम में होते हैं, जैसे एलाइजा है या वेस्टर्न ब्लॉट है, जो एडल्ट्स में यूज होते हैं, वही टेस्ट चिल्ड्रंस में यूज नहीं हो सकते, मतलब बिलो द एज ऑफ 18 मंथ्स से 18 मंथ से छोटे बच्चों में वही टेस्ट नहीं हो सकते। Required expensive laboratory equipment, trained staff, general unobtainable in the resource poor area। इसके लिए अब जो टेस्ट बच्चों में होता है, उसके लिए एक तो एक्सपेंसिव लेबोरेटरी चाहिए, ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए, जो कि ऐसे लोग मतलब जनरली इस तरह के लैब आपको पुअर एरियाज में या रिमोट एरियाज में नहीं मिलते। HIV treatment for children shows the progress of HIV infection। Okay, children ideally need to be given drug in the form of syrup or powder due to difficulties in swelling। अगर जब हम बच्चों में HIV का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, once a child is get detected with or diagnosed with HIV, and when we are starting, तो वो HIV का जो वायरस उसका मल्टीप्लिकेशन को स्लो कर देता है बॉडी में। ठीक है,
चिल्ड्रंस को जो हम मेडिसिन देंगे वो भी हमको सिरप या पाउडर के फॉर्म में देना होता है। और जो मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे होते हैं जो कि HIV के साथ रह रहे हैं, मतलब जिनको HIV है, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी कोई भी बीमारी हो जाती है, राइट। तो उनको दिक्कत ये होती है कि अपॉर्चुनिस्टिक जो डिजीज कंडीशन होते हैं वो ना हो जाए। अगर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कंडीशन हो गए तो फिर बहुत रिस्की रहता है बच्चों को बचाना। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मम्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब हो गया तो भी रिस्क आ जाता है बच्चों पे। Standard precautions, infection control, these we will see in next class. That's it for today's class. I hope you understand the topic.